Very good morning to all of you. Now, this message is for all those who are writing mains examination this year, those who will be writing and those who are being confident that they'll be writing their mains examination. Now, prelims is over and yes, it was tough, lengthy and mentally exhausting. सबके लिए था वो, right? But the real game of UPSC starts now. अब जो गेम शुरू होगा, that is these between prelims and mains, we are effectively having only 80 days. कितने दिन है हमारे पास में? सिर्फ और सिर्फ 80 दिन है. We have 80 days and we have to strategize these 80 days क्योंकि multiple of those students who have given their prelims, they'll be now doing all of those analysis, master analysis, cut off कितना जाएगा सर, thousands of messages कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, प्रेडिक्शंस करने वाले आएंगे, अटेम्प्ट कितने किए हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी हैपनिंग एंड इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 10 to 15 डेज. जब तक यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आ जाता, मतलब 10, 12 दिन, 14 दिन लगता है, 13 to 14 डेज, तब तक आपका समय वेस्ट होता है. नॉर्मली हर साल का ये ट्रेंड है. नाउ टॉपर्स विल नॉट बी डूइंग दैट. जो टॉपर होगा, ही विल बी starting with the mains preparation. He'll be starting with the mains preparation. क्योंकि anyways आपको मेंस तो करना ही है ना. इस बार नहीं तो अगली बार लिखेंगे. लिखना तो अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो कभी ना कभी तो आप मेंस लिखने के लिए आए हैं. And thereby they directly start with the mains preparation. Guys, ये टाइम है आपको अपने मेंस के बारे में सोचने का. Because if you waste this time, you have taken 1 day rest, 1 day or 2 day rest. आपने ले लिया, आराम कर दिया है. Now you should be strategizing for your mains examination. Now, regarding that, if you want to strategize, 2 core aspects which give you your rank is your optional and ethics. Now, if you see from GS portions, this ethics paper is easily manageable. नहीं तो अगर आखिरी तक आप लेके जाएंगे तो लास्ट तक प्रिपरेशन नहीं होती है. Right, कर लूंगा and thereby you are being stuck in GS paper 1, 2, 3 and other papers. And कभी भी ये क्लू नहीं होता है कि भाई GS का GS4 भी था and thereby we have to effectively strategize that particular paper which is giving us rank. जो कि एक्चुअली में हमें, अगर आप देखते हैं कि if you see top 50 rankers will be finding that there are multiple of those candidates who are getting more than 140 and because of that they have got that rank, they have got their desired service. तो ethics में marks लेके आना, it will be giving you a desired service. Is that clear everyone? तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि from the 1st June, this is ethics mastery course. मतलब हर साल normally at this particular time normally we launch this course, ethics mastery course, जो कि 1st June से शुरू होने वाला है. From the 1st June, we are starting from the 1st June. और इसमें मैं approximately 17.5 hour में मैं आपकी पूरी ethics with all those value addition in a theme wise manner, introduction, body, conclusion, with all of those frameworks. जैसे मैं कहूं कि मेवा, morality, ethics, values and attitude पे change एक थीम है यूपीएससी की, और इस थीम पे हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है. तो बी नोइंग इन आवर टिप्स कि इसमें ये 7 कीवर्ड लिखने हैं: ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, रोल टेकिंग, कंडीशनिंग, प्रेजुडिसेस, मीडिया एंड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है तो 5 कीवर्ड कौन से जाने वाले हैं? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल. इंट्रोडक्शन कैसा होने वाला है? कंक्लूजन कैसा होने वाला है? ऑल ऑफ दैट विल बी कवरिंग इन दीज 17.5 आवर. 17.5 घंटे में मैं ये सारा एस्पेक्ट मैं खत्म कर दूंगा. एंड देयर बाय इफ यू सी टेक्निकली, तो अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग योर 2.5 आवर ऑन अ डेली बेसिस, तो अप्रोक्सीमेटली in 7-8 days, 8 days will be finishing it off with your case studies, theme wise case studies. Each and everything will be done in these classes. Now we are also providing you with that notes that you'll be getting, those PDF notes that you are getting. It will be high quality notes, right? ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिजाइन किस एस्पेक्ट में है? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, द वे यू नीड 1 pager नोट दैट यू नीड फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना, वो उसी एस्पेक्ट में होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन अ फ्रेमवर्क मैनर, जैसे हम लोग फ्रेमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं. सो सभी में क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल इफ यू सी एथिक्स,
तो 4 एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से वो 4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज योर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम्स, डायग्राम्स कीवर्ड के साथ में आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स एंड वेरियस फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। So if you see diagram के साथ में, if you see, will be also providing you ready-made taglines. So all of this will be done in these 17.5 hours. So it will be done in these 17.5 hours. इसलिए कोशिश करना है कि you do not waste your time, do not prolong this aspect कि आप लास्ट तक आप वेट कर रहे हैं and then you are not being अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि भाई पूरा टाइम वेस्ट होता जा रहा है। और जितना आप टाइम, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्टर है, सेकंड अटेम्प्टर है, तो नॉर्मली दिस टाइम गेट वेस्टेड। सो द फोकस शुड बी कंप्लीटिंग एंटायर एथिक्स। एंड रिगार्डिंग दैट आई एम आल्सो कंडक्टिंग वन वेबिनार ऑन 28 मई कि सब कुछ, पूरी प्रिपरेशन यूपीएससी की, जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, all of that, and in that ethics and GS paper 2, GS2 and GS4 specifically जो कि बहुत ही स्कोरिंग GS पेपर्स हैं, उन पे कैसे स्कोर करना है, ऐसे कैसे स्कोर करना है, all of that I'll be discussing all of that on 28th May, that is 2 PM. तो ये aspect, all of those aspect will be discussing here. So do join this course, and if you see in today's YouTube video, that live video that is going, इसके डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक है, दैट इज ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज वेबसाइट, और उस वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे विल डायरेक्टली लैंडिंग अप इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट? सो विद दैट आई एम होपिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।